Hi, this is Professor C. A. Nihit Zaveri. I'll be teaching you DirectX subject for CA Final. Well, first of all, a very warm welcome to all of you at CA Final and congratulations for clearing IPCC. Now, at CA Final level, the medium of teaching जिसके ज़रिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये इसमें टू वे कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगा, बट विथ अ वन वे कम्युनिकेशन ऑल्सो. आई अश्योर यू ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टीचिंग इन द एंटायर कंट्री फॉर CA फाइनल डायरेक्टएक्स. वेल, CA फाइनल में I have 17 years of teaching experience. I had been teaching at various levels and I'm specialized for particular topics. Final CA में सबसे पहले this subject which you are going to study, DirectX, this subject you already had at IPCC level also. लेकिन IPCC level और Final CA level में नाम के अलावा सब कुछ completely different है. IPCC level पे you had 5 heads of income, house property, salary, business profession, capital gain. यहाँ पर CA final में of course it's a continuation, लेकिन you will have completely different topics. यहाँ पर आपको wealth tax, transfer pricing, minimum alternate tax वगैरह topics आएंगे. This is continuation of IPCC taxation, लेकिन much advanced level. Final CA direct tax is very interesting. You will love this subject. The only problem is subject is very vast. It's very interesting but very vast subject. आपको you really need to focus and concentrate on each and every topic which I will be teaching you. सबसे पहले, I'm sure you are appearing for the first time or maybe second time, third time, but under my teaching you will be appearing for the last time because you will clear in one go only. Number of people have got ranks under me. Number of people have secured 80 plus marks in this subject DirectX. ये subject में 60 plus marks लाना is a very big deal और मेरे अंडर स्टूडेंट्स को 75-80 ऐसे आ जाते हैं. So I can assure you of a very good quality learning. मेरे अंडर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो you will fall in love with this subject. I can guarantee you for that. But सबसे पहले those who are appearing for the first time, उनके लिए एक थोड़ा सा brief introduction to the subject या introduction to paper pattern. Friends, when I was the student, there used to be 8 questions. 8 questions. All 8 questions were compulsory. We had to answer all the 8 questions. लेकिन आपके टाइम पे the paper pattern has completely undergone changes. Now you will be having only 7 questions as compared to 8 questions. उसमें से भी आपको question number 1 will be compulsory. Question 1 will be compulsory. And out of remaining 6 questions, you have to attempt any 5. Any 5 out of remaining 6. Meaning whereby आपको total 6 questions attempt करने हैं. हमारे ज़माने में मेहनत ज़्यादा पड़ती थी, 8 क्वेश्चन. आपके ज़माने में you have this advantage. दूसरी चीज़, question number 1 will be for 20 marks, but it will not be a single question of 20 marks. First of all, I would recommend you कि ये paper pattern आप लिख लो कहीं पे. It will be of great help to you. जब आप mentally prepare होके जाते हो कि आप क्या face करने वाले हो एग्जाम में, तो you can really crack the paper. But if you are blank about it, क्या आने वाला है, तो there will be only an element of surprise for you. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी जब मेरा बैच ख़त्म हो जाएगा, तब आपको पेपर पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सो पेपर पैटर्न में इट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, बट इट मे नॉट बी वन सिंगल क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स. जनरली क्या होता है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब क्वेश्चंस. 5 मार्क के 4 क्वेश्चन या 12 मार्क का और 8 मार्क के 12 + 8 2 क्वेश्चन. It could be 12 + 8, it could be 5 + 5 + 5 + 5, it could be 10 + 10, it could be 10 + 3 + 7, it could be any combination. Final CA है, nobody can predict. लेकिन one thing for sure, first question compulsory for 20 marks.
नेचुरली आउट ऑफ रिमेनिंग 6 आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इट विल बी द मार्क्स वेटेज विल बी 16 मार्क्स ईच क्वेश्चन इनटू 5 मार्क्स, सॉरी इनटू 5 क्वेश्चंस टोटलिंग टू 80 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर भी इट विल नॉट बी 5 single questions of 16 marks each. It could be any combination, 10 plus 6, 12 plus 4, 8 plus 8, 7 plus 9. It could be any combination, लेकिन each question will be worth 15 marks. आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ोगे पूरी दुनिया वही क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ेगी। रीज़न, फॉर अ सिंपल रीज़न, 7 में से वो एक क्वेश्चन अकेला एक्सट्रीमली टफ होगा, शायद समझ में भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, एंड एवरीवन विल बी लीविंग आउट दैट क्वेश्चन ओनली। सो ऑप्शन इज नथिंग ऑफ अ ग्रेट एडवांटेज। सिंपली आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स, रिमेनिंग 16 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस टोटलिंग टू 80 प्लस 20 100 मार्क्स। ओके, नाउ हमारी इंस्टीट्यूट ने 2 ग्रुप्स में 8 पेपर को डिवाइड किए हुए हैं, 8 सब्जेक्ट्स। आपको सब्जेक्ट्स के नाम मालूम ही होंगे, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इन 8 सब्जेक्ट को जिस ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज किया है हमारी इंस्टीट्यूट ने, इट इज़ अरेंज समवॉट दिस वे that 8 papers are divided into 2 groups, group 1 and group 2. Group 1 में there are 4 subjects and group 2 में there are 4 subjects. ये आपको मालूम ही है, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, you are smart enough. लेकिन what I want to explain you is both the groups have 2 theory subjects and 2 practical subjects, 2 practical 2 theory. Second group में भी 2 practical subjects and 2 theory subjects. ऐसा होता है कि some of these students are very good at practical questions, theory में weak होते हैं, और some students are very good in theory, they can by heart 1000-2000 pages like this. So institute ने दोनों टाइप के students को equal मौका दिया है। Those who are good at practical, they have to score more marks in practical and try to get 40 plus 40, 42, 45, anyhow pass in theory subjects. And ulta, those who are good at theory, they have to score 60 plus marks in theory subjects and try to manage to pass or get 45 plus in practical subjects. मतलब दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को इक्वल तरीके का मौका दिया हुआ था। फर्स्ट ग्रुप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो फर्स्ट इज अकाउंट्स एंड SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड बाकी के 2 ऑडिट एंड लॉ, दीज 2 आर थियरी सब्जेक्ट्स। अभी सेकेंड ग्रुप की बारी। सेकेंड ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल माना जाता है, कौन से सब्जेक्ट्स को थियरी? आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। सेकेंड ग्रुप में इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला कंप्यूटर वाला चैप्टर, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट, दैट इज थियरी। एंड ऑफ कोर्स even indirect tax is also considered to be theory subject. Costing is a practical subject in group 2 and DTE जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, DTE is also considered to be a practical subject. लेकिन DTE को practical भले माना जाता हो, but I am of the different opinion. I am of the opinion that DTE is neither a completely a practical subject nor is it completely a theory subject. DT is practical कम theory both combined together. DT एक अलग किस्म का सब्जेक्ट है। यहाँ पे आते तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले थियरी पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ ग्रिप, अ वेरी गुड ग्रिप ओवर थियरी। पहले थियरी पढ़ो एंड बेस्ड ऑन थियरी अप्लाइंग योर थियोरेटिकल नॉलेज यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये कंप्लीटली ना तो प्रैक्टिकल है ना थियरी है, लेकिन बैठता फिट है प्रैक्टिकल में। ओके, तो इफ़ यू आस्क मी ये सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे और थियरी क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, तो DT के लिए अगर आप पूछ रहे हो कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का और थियरी कितने मार्क्स का, तो माय आंसर इज, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसको मानते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिकल क्वेश्चन? अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मानते हो जहां पर
कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व, तो DT में प्रैक्टिकल विल बी ओनली फॉर क्वेश्चंस विल बी ओनली फॉर 20 मार्क्स एंड थियरी विल बी फॉर 80 मार्क्स, अगर आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन मानते हो तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। DT में व्हाट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन? Practical question does not necessarily mean those questions where calculations are involved. Those questions where you don't have to by heart an answer. Those questions where you have to use your brain, you have to apply the provisions of Income Tax Act. Those questions are called as practical question. अगर आप मेरे साथ agree करते हो, ऐसे questions को practical questions मानते हो, और like case study type of question, जहाँ पर आपको रट्टा मार के बाय हार्ट करके आंसर नहीं देना है, आपने जो रटा हुआ है उसमें से आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से इनकम टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई करके आंसर देना है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, सपोजिंगली योर क्लाइंट इज आस्किंग यू सम क्वेश्चन, ये सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हुआ तो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिकल मानते हो तो प्रैक्टिकल का वेटेज विल बी 80 मार्क्स एंड थियरी का वेटेज विल बी हार्डली 20 मार्क्स। तो दिस सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ही होते हैं बट नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन। IPCC लेवल पे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा हुआ करते थे, यहाँ पे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, यहाँ पे केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो यू विल लिटरली फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, स्पेशली द वे आई विल बी टीचिंग यू। IPCC के कंपेयर में IPCC में इनकम टैक्स का वेटेज, डायरेक्ट टैक्स का वेटेज वाज 50 मार्क्स, बट नाउ एट CA फाइनल लेवल डायरेक्ट टैक्स कम्स एज अ फुल फ्लेज 100 मार्क सब्जेक्ट। ओके, अगर 60 प्लस स्कोर करना है, 40 इज अ पासिंग मार्क, 50 एवरेज चाहिए आपको, लेकिन डिस्टिंक्शन के लिए 60 प्लस चाहिए, एग्जाम्शन के लिए 60 प्लस चाहिए। अगर आपको 60 प्लस लाने हैं इस सब्जेक्ट में तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? अंडरस्टैंड, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? पहले तो पेपर पैटर्न, होप यू हैव अंडरस्टूड द पेपर पैटर्न। 7 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन कंपलसरी, वो तो आंसर देना ही है, बाकी के 6 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, नाउ आपको एग्जाम शुरू होने से पहले 15 मिनट का वक्त दिया जाता है टू ग्लैंस थ्रू दी पेपर। क्वेश्चन पेपर देने के बाद 15 मिनट का वक्त, आपको मालूम ही होगा, नथिंग ग्रेट। उन 15 मिनट में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 को देखना ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। आपको क्या करना क्या है, तो ये 6 क्वेश्चंस को क्विकली यू हैव टू ग्लैंस थ्रू। 15 मिनट में 6 क्वेश्चन, लेकिन आप 15 मिनट ज़ाया नहीं करोगे, आप मैक्सिमम 6 से 9 मिनट के अंदर अंदर उन 15 मिनट में से 6 मिनट में, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन, यू विल ग्लैंस थ्रू दीज 6 क्वेश्चन क्विकली, और इन 6 में से कौन से को अटेम्प्ट नहीं करना है वो निकाल दो, उसको निकाल दो। सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्वेश्चन को निकालना है, लेकिन यू हैव टू मेक अ प्रॉपर चॉइस। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद यू रियलाइज कि जो क्वेश्चन आपने कैंसिल किया वो सबसे आसान था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेक अ प्रॉपर चॉइस। क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है, उसको देखो ही मत फिलहाल के लिए, बाकी के 6 में से 1 को उड़ा दो, बाकी के 5 अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्ट योर आंसर विथ दैट क्वेश्चन विच यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विथ, विच यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आता ही है आपको, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, पहले क्वेश्चन 1 फिर 2 फिर 3, यू कैन स्टार्ट विथ एनी क्वेश्चन। लेकिन कोई भी क्वेश्चन में अगर ABC है, समझो क्वेश्चन नंबर 3 से आपने शुरू किया चलेगा, लेकिन क्वेश्चन 3 में देर आर 3 सब क्वेश्चंस A, B, C। दिस इज फॉर 10 मार्क्स, दिस इज फॉर 4 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। सपोजिंगली इस तरीके से अरेंज किया है, तो ये आपका सीरीज में जाना चाहिए A, B, C। अगर आपको पहले A अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में C अटेम्प्ट करना है, तो फिनिश ऑफ विद A, लीव सम स्पेस फॉर B, देन स्टार्ट विद C। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पहले A लिखा, फिर C लिखा, फिर B लिखा, ये भी अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फाइन। उसके बाद
you are attempting with question number 4, then you are attempting question number 1. So this is absolutely fine, ये चलता है, correct? Okay, now if you really want to score good marks in this subject, तो एक छोटा सा मेरा recommendation है, छोटा सा system ध्यान में रखना. DT paper, majority people find it as very tough and lengthy. मैं ये कहता हूँ पेपर टफ नहीं होता, पेपर कुछ इस तरीके से होता है. आउट ऑफ 100 मार्क पेपर, 20 marks worth of paper is damn simple. It's very easy. Lollipop. You must get 20 out of 20 in this particular part of the paper. 20 marks paper is very simple. 20 marks worth of paper is extremely tough. आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा. बाई चांस समझ में आ गया तो उसका आंसर नहीं आता होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी आता है, तो समझ लेना वो आंसर गलत होगा. यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दिस 20 मार्क वर्थ ऑफ पेपर. ये एक्सट्रीमली टफ होता ही है, ये रखना पड़ता है टू कंट्रोल द रिजल्ट. अगर रिजल्ट कंट्रोल नहीं किया, सबको पास कर दिया, तो सीए का जो मार्केट में सोशल स्टैंडिंग है दैट विल कम डाउन. सो 20 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर विल बी एक्सट्रीमली टफ. देख के घबराने का नहीं. 20 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर विल बी डैम सिंपल. यू मस्ट गेट 20 आउट ऑफ 20 फुल. ये पार्ट से अगर आपने अपना पेपर यहाँ से शुरू किया ऐसे किसी क्वेश्चन से जो बहुत ही सिंपल है, तो यू शुड नॉट स्टार्ट जंपिंग. ठीक है, यू हैव टू कीप अ ट्रैक. 20 मार्क्स ईजी आता ही है, एंड रिमेनिंग 60 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर is average. Remaining 60 marks worth of paper is average. Here you should try to get somewhere around 40 plus, and that is how you can get 60 या 60 plus. 60 या 60 plus. And it is possible. मेरे अंडर में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट को, not only in Mumbai, even outside Mumbai also, बहुत सारे लोगों को भर भर के 60 plus marks आते हैं. The maximum number of marks which any of my student has ever got is in May 2013 attempt, Kruti Shah from Mumbai, All India first rank. She got 91 in direct tax. Second highest is in again May 2013 attempt, 88 marks. उसके बाद 87 is the third highest, and then 85. These are the marks secured by any of my students, बराबर. and 60 plus तो many people, मैं तो गिनती भी नहीं करता हूँ. Okay, now November 2012 attempt and May 2013 attempt, continuously for 2 attempts my students secured all India first rank. आपको मालूम ही होगा, पोस्टर वगैरह बैनर देखा ही होगा, तो बताने वाली ज़रूरत नहीं. Coming back, what I mean to tell you is that कि don't expect any marks in this 20 mark worth of paper. अगर कुछ मार्क्स आ जाते हैं बाई चांस, 2-3 मार्क एट्सेट्रा, लकीली मटका लग जाता है कभी कभी, तो फील हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. ये जो 60 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर है, यहाँ पे आपको 40 प्लस लाने हैं, और ये जो 20 मार्क्स का पेपर है विच इज़ वेरी सिंपल, यू मस्ट गेट 20 आउट ऑफ 20 फुल. अगर यहाँ पे आपको 20 आउट ऑफ 20 नहीं आते हैं तो समथिंग रॉन्ग विथ यू. आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं था, यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, तो ये ख्याल रखना है. दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग, आई डोंट नो, सीए फाइनल लेवल पे सम मैच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, कि आप मेंटली यू आर फुल्ली मैच्योर्ड, आप सेंटिमेंटल नहीं हो जाओगे. फिर भी सम पीपल, सम नहीं, मेनी पीपल एट सीए फाइनल लेवल जो ऐसे वाले क्वेश्चन से पेपर शुरू करते हैं जो सिर्फ 20 मार्क का वेटेज रखते हैं, उसके बेसिस पे पूरे पेपर को जनरलाइज कर लेते हैं, पूरे पेपर को स्टैंडर्डाइज करते हैं कि पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ. आंसर कुछ टफ नहीं होता. पेपर पैटर्न इज ऑलवेज लाइक दिस. मे अटेम्प्ट हो या नवंबर, लेकिन अगर आपने यहाँ से शुरू किया ऐसे वाले किसी क्वेश्चन से, तो आपको पूरा पेपर टफ दिखाई देगा. ऐसे वाले किसी क्वेश्चन से शुरू किया तो आपको पूरा पेपर सिंपल लगेगा, लेकिन हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. व्हाट आई मीन टू टेल यू, कि अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो यू शुड नॉट स्टार्ट क्राइंग. यहाँ से शुरू करते हो तो यू शुड नॉट स्टार्ट जंपिंग. पेपर इज ऑलवेज लाइक दैट. डायरेक्ट टैक्स, फाइनल सीए पेपर्स आर लाइक प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम. अगर आप सिस्टम समझ लो
तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ सिस्टमैटिकली करो, सोच समझ के करो कि आप क्या फेस करने वाले हो एग्जाम में, तो यू कैन रियली स्कोर वेरी वेल। लेकिन आप ऐसे ही ब्लैंक जाओगे, कुछ मालूम ही नहीं आपको कि क्या आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, आईपीसीसी में जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो वो अलग थे, फाइनल में जो टॉपिक्स है वो अलग है। पर आईपीसीसी के टॉपिक्स क्या फाइनल में आते हैं क्या? आंसर ऑफ कोर्स यस। आईपीसीसी के जो मेन टॉपिक्स हैं, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सब फाइनल में रिपीट होगा। आई विल बी टीचिंग यू अबाउट इट, डोंट वरी। लेकिन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, ये सब नहीं आता फाइनल में। ये फाइनल सीए में नॉनसेंस चीज़ें नहीं आती, वो आईपीसीसी के लिए था, आईपीसीसी में आ चुका। फाइनल लेवल पे यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, लेकिन की फोकस विल बी ऑन प्योर फाइनल सीए टॉपिक एंड आईपीसीसी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स। अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ आईपीसीसी टॉपिक्स एट सीए फाइनल लेवल, तो आई वुड से out of 100 marks paper, IPCC level topics will be worth around 16 to 20 marks, 16 to 20 marks, mainly business profession and capital gain, profits and gains of business profession, capital gains, income from other sources, and of course chapter 6 से deductions. These are the key topics. बाकी फाइनल सीए का जो पोर्शन है, फाइनल सीए के पोर्शन का वेटेज होता है 80 to 84 मार्क्स, 80 to 84 मार्क्स, दिस इज द की फैक्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आईपीसीसी के टॉपिक्स छोड़ दो। आईपीसीसी टॉपिक्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस फाइनल में आते हैं, आईपीसीसी लेवल के टॉपिक्स के क्वेश्चंस जब फाइनल में आते हैं तो दे आर रियली सिंपल, दे आर वेरी मच इजीली मैनेजेबल। लेकिन आप चैप्टर पढ़ के जाओगे तो ही, अगर आप बगैर पढ़े जाओगे, चांस लोगे, तो इट विल बी वेरी सुसाइडल फॉर यू। तो आपको आईपीसीसी के टॉपिक्स भी करने हैं, मैं पढ़ाऊंगा। ओके, नाउ एज फार एज सीए फाइनल इज कंसर्न, बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग यू, वन स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस आई विल गिव टू एवरी ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, इज दैट डोंट रेफर टू एनी प्रिडिक्शन ऑफ एनीबडी। बहुत सारे लोग मार्केट में प्रिडिक्ट करते हैं, ये चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर से इतने मार्क्स का। Don't refer to any such nonsense thing. फाइनल सीए में nobody can predict, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी मैंने आपको बता तो दिया, फाइनल सीए में आईपीसीसी टॉपिक्स का वेटेज 16 to 20 मार्क्स होता है। दिस इज एवरेज, दिस इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 30 अटेम्प्ट्स। पिछले 15 साल के पेपर, 15 से 20 साल के पेपर का एवरेज है। एक अटेम्प्ट में, बीच में एक अटेम्प्ट में आईपीसीसी टॉपिक्स का वेटेज वो 0 मार्क्स, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था आईपीसीसी के किसी भी टॉपिक से। और बीच में एक अटेम्प्ट हुआ था जहाँ पे आईपीसीसी टॉपिक्स के ऊपर 49 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके थे, 49 मार्क्स क्वेश्चन। इसलिए ऑन एन एवरेज 16 to 20 मार्क्स। बट ये आपका अंदाज़ा बनाने के लिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि अंदाजे से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आईपीसीसी टॉपिक्स पे आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ दो या इसी को करके जाओ। सिर्फ इसी को करके जाओगे तो फेल हो जाओगे। एज यू कैन सी इसका मार्क्स वेटेज इतना नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, ओके। फाइनल सीए है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। असेसमेंट प्रोसीजर करके एक चैप्टर है, असेसमेंट प्रोसीजर। वो चैप्टर का वेटेज ऑन एन एवरेज 10 से 15 मार्क माना जाता है, 10 to 15 मार्क्स असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर। बीच में एक अटेम्प्ट नवंबर 2002 अटेम्प्ट में मार्क्स वेटेज वो 0, एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से। हालांकि मार्क्स वेटेज ऑन एन एवरेजेस, एक ही चैप्टर का वेटेजेस 0, एक ही चैप्टर का वेटेजेस 10 to 15 मार्क्स। एक अटेम्प्ट में there were 65 marks worth of questions only from assessment procedure chapter, 65 marks out of 100 marks. You can imagine इतना वेरिएशन, एक अटेम्प्ट में 0 मार्क्स, एक अटेम्प्ट में 65 मार्क्स। जिन्होंने ये चैप्टर छोड़ दिया होगा, पिछले अटेम्प्ट के मार्क्स वेटेज को देख के छोड़ के गए होंगे, उनका वाट लग गया होगा, डेफिनेटली दोबारा रीअपेयर करना पड़ा होगा। व्हाट आई मीन टू से इज दैट
बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में DT के ऊपर, उसमें अलग अलग मार्क्स वेटेज दिए होते हैं अलग अलग चैप्टर के लिए। स्कैनर में भी मार्क्स वेटेज दिए होते हैं। डोंट रेफर टू दैट, इट विल बी सुसाइडल फॉर यू। दैट्स अ वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच आई वुड लाइक टू गिव यू। दूसरी चीज, आउट ऑफ दीज 8 पेपर्स, 8 पेपर जो है उनमें से 2 सब्जेक्ट, 2 पेपर एक्सट्रीमली लेंदी होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। 3 घंटे में ख़त्म कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों के दोनों पेपर आपको आते हैं ग्रुप 2 में, दोनों ग्रुप 2 में। एक है DT, दूसरा कॉस्टिंग। DT एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग विल बी योर 5th सब्जेक्ट, DT विल बी योर 7th सब्जेक्ट। दोनों पेपर लेंदी, दोनों सेकेंड ग्रुप में। और अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो बाय द टाइम यू रीच टू 7th पेपर आपका एनर्जी लेवल ऑलरेडी थोड़ा डाउन हो चुका हुआ होगा, क्योंकि आप 7-7, 6-6 पेपर दे चुके, आपकी उंगलियां दर्द कर रही होगी लिखते लिखते। लेकिन यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड। आपको स्पीड में लिखना है। अगर आपने नॉर्मल स्पीड से लिखा या थोड़ा स्लो लिखा, शायद पेपर ख़त्म नहीं होगा। वो कंप्लीटिंग पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर DT सब्जेक्ट, इवन फॉर कॉस्टिंग ऑफ कोर्स। वेल, आई वुड जस्ट गिव यू अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस कि 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर इज़ फॉर 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर ख़त्म करना है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए यू विल बी हैविंग 18 मिनट्स, या सिंपली 1.8 मिनट पर मार्क, 1.8 मिनट पर मार्क, यानी कि तकरीबन 1 मिनट 48 सेकेंड्स, 1 मिनट 48 सेकेंड्स टू बी वेरी प्रिसाइज। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आपको वक्त का ट्रैक रखना है, टाइम का ट्रैक रखना है। यू हैव टू फिनिश योर पेपर एज फास्ट एज इज पॉसिबल। थोड़ा आगे पीछे हो गया तो इट विल अफेक्ट योर ओवरऑल मार्क्स। अच्छा, नाउ मेरा काम क्या रहेगा? I will be not only explaining you the provisions of Income Tax Act and Wealth Tax Act, plus I will make you solve number of questions। मैं आपको इतना प्रैक्टिस दूंगा, आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, मार्केट में आई एम द ओनली ट्यूटर हु सॉल्व्स क्वेश्चंस। इधर मुंबई में भी जितने भी ट्यूटर्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट टीच क्वेश्चंस, सिर्फ थियरी पढ़ा के छोड़ देते हैं एंड स्टूडेंट्स फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। ये आपको एग्जाम देने पर पता चलता है। कुछ नॉर्थ इंडिया साइड के, दिल्ली साइड के ट्यूटर्स हैं, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीबडी, बट दे आर वेरी वीक इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते हैं। आपको वेल्थ टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये सब एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं। इसमें अगर आपको क्वेश्चंस नहीं कराए जाए तो आप समझ लो आपका पैकअप हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस। मैं आपको वेल्थ टैक्स के लिए आई विल मेक यू सॉल्व 66 क्वेश्चंस। असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर के लिए आई विल मेक यू सॉल्व 51 क्वेश्चन। व्हाट आई मीन टू से इज दैट मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतने सारे वेराइटी, इतने हैं क्वेश्चंस, इतने हैं अलग अलग वेराइटी वाले, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। आई विल सी टू इट कि आपको प्रोविजंस ना सिर्फ समझ में आए, बट आपका जो पेपर है वो टाइम पे ख़त्म हो जाए। आपको 10 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 18 मिनट्स का वक्त मिलता है। आई विल सी टू इट दैट यू फिनिश योर क्वेश्चन इन 12 to 13 मिनट्स। फॉरगेट अबाउट 18 मिनट्स, 12 मिनट में मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। आई विल शो यू, I will not only explain you the provisions plus how to solve the questions, plus I will also show you the techniques of solving the question, जिसकी वजह से आप स्पीड में जा सकते हैं। मैं आपको दूसरे स्टूडेंट्स की गलतियां भी सिखाऊंगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स किस किस्म की गलतियां करते हैं, दूसरों की गलतियों से आपको सीखना है कि ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो लोग गलती करते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। दैट आई विल बी टीचिंग यू, that will help you a lot. Now what I mean to tell you is that कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको समय का ख्याल रखना है। You have to keep a track. एक स्टूडेंट बीच में क्या होता है कि हम इतने एंड्रोस्ड हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि हमको इतना चैलेंजिंग लगता है, मज़ा आता है सॉल्व करने में।
एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क का है, 1.5 घंटा लगा दिया उसने, 1.5 घंटा, यानी कि कितने मिनट हो गए, 180 मिनट्स में से 180 मिनट्स में पेपर खत्म करना है, 90 मिनट्स उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन के ऊपर लगा दिए, फेल हो गया। बाकी 90 मिनट्स में बाकी के 6 क्वेश्चन सॉल्व करने नामुमकिन, 15 मिनट पर क्वेश्चन, नॉट पॉसिबल। फिर फेल होने के बाद मेरे पास आया और बिलीव मी ही एंडेड अप गेटिंग 67 मार्क्स, 67 मार्क्स। ये चमत्कार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको तरीका बताया कि इस तरीके से हैंडल करना चाहिए पेपर को। इन सच सिचुएशन अगर आपको टेक्निक समझ में आए तो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। इट इज़ नथिंग बट अ टेक्निक, हर चीज़ के लिए एक टेक्निक होता है। अगर आप टेक्निक सीख लो तो यू कैन ऑल्सो डू द मिरेकल। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, आपको जब क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर आपको हाथ में आए, आंसर शीट का पहला पेज, फ्रंट पेज ऑफ आंसर शीट, उसमें कॉलम्स होती हैं, क्वेश्चन नंबर की कॉलम, और आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं वो आपको टिक करना है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं। आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी के 6 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये जितने भी क्वेश्चन नंबर लिखे उसमें से 6 क्वेश्चन के ऊपर आपका टिक मार्क होना चाहिए। आपको आता हो कि ना आता हो, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, डोंट लीव द आंसर ब्लैंक, यू मस्ट पुट अ टिक मार्क। टिक मार्क मतलब कुछ लिख के आओ, ऐसा नहीं कि बगैर कुछ लिखे टिक करो। आंसर में अगर आपको आंसर नहीं आता देन ऑल्सो यू मस्ट राइट एटलीस्ट 2 लाइन्स, 2 to 3 लाइन्स, कुछ भी लिख के आओ। क्योंकि कभी कभी मार्क्स देने वाला पेपर करेक्टर वो आपको 1 मार्क भी एक्स्ट्रा देना चाहता है, लेकिन आपने क्वेश्चन अगर ब्लैंक रखा है, कुछ लिखा ही नहीं, तो ही हैज़ टू गिव यू 0 कंपल्सरली। मैंने पास्ट में पेपर्स करेक्ट किए हुए हैं, इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्शन लिस्ट आता है हमको कि किस तरीके से पेपर करेक्ट करना है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इतना ही कहूँगा कि यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन हु इज़ गाइडिंग यू। आपको आंसर नहीं भी आता है, फिर भी मिनिमम 2 से 3 लाइन, 4 लाइन कुछ ना कुछ लिख के आओ। फ्रंट पेज पे आपका टिक मार्क होना चाहिए उस क्वेश्चन में कि आपने वो अटेम्प्ट किया हुआ है। फिर अंदर कुछ लिखो ना लिखो, ठीक से लिखो, आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, बराबर। ओके, दूसरी चीज़, रिजल्ट्स आर बैड, रिजल्ट्स आर बैड, रिजल्ट 7%, 8%, 10% के आसपास आता है। वेल नथिंग टू वरी, हमारे टाइम में रिजल्ट्स यूज टू बी 0.25%, मेरे टाइम में, आपके टाइम में एटलीस्ट 7-8% आता है, विच इज़ डेफिनेटली फार बेटर ऑफ। मार्केट में डिमांड सप्लाई रेशियो होता है, उस हिसाब से रिजल्ट्स मेंटेन करना पड़ता है। अगर रिजल्ट मेंटेन नहीं किया, सबको पास कर दिया, तो आपको मालूम है सीए का सोशल स्टेटस क्या होगा। जो लोग एलएलबी करते हैं, एलएलबी एलएलएम, महीने के 6,000 रुपये में मिलते हैं, 6,000 रुपया सैलरी, प्यून से भी कम सैलरी में एलएलबी पास एलएलएम आदमी मिल जाता है। क्यों? फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि वहाँ पे पासिंग रेशियो इज़ वेरी हाई। तो इन सच सिचुएशन अगर सीए का रिजल्ट मेंटेन किया जाता है तो इट इज़ गुड इनफ। लेकिन 10% लोगों को पास करना है, 90% लोगों को फेल करना है। अभी जब इंस्टीट्यूट वाले पेपर करेक्ट करते हैं तो पेपर करेक्ट करते वक्त उनका देखने का नज़रिया ये नहीं होता है कि किन को पास करना है, किन को पास करना है वो देखने का नज़रिया नहीं होता है, किन को फेल करना है, दैट इज़ द व्यू पॉइंट। हम जब पेपर्स करेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा नज़रिया वही होता है कि किसको निकालो इधर से। तो सबसे पहला प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपना पेपर कंप्लीट नहीं किया। आप अपना काम, अगर आप 3 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म नहीं करते हो, पूरा मतलब एटलीस्ट 85 या उससे ज़्यादा मार्क्स का पेपर, 85 या मोर देन 85 मार्क्स पेपर, अगर आपने एटलीस्ट इतना पेपर ख़त्म नहीं किया, दैट मीन्स आप प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे हो। आपको जो काम दिया गया है 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, आप नहीं ख़त्म कर पाए, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव फैक्टर। मतलब आप सीए बनने के लायक नहीं हो, ऐसे इंस्टीट्यूट मानती है, और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देके आपको सीधा उड़ा दिया जाएगा, आपको इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको खुद तय करना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड आना है कि राइट हैंड साइड। वो हिसाब से आपको
पेपर खत्म कर रहा है, नहीं यार, डोंट बॉदर अबाउट योर हैंड राइटिंग्स। जो आदमी आपका पेपर करेक्ट करेगा वो आपसे काफ़ी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस बंदा होगा, वो आपके आंसर्स डेफिनेटली समझेगा, उसको समझ में आएगा आपने क्या लिखा है। सो डोंट वरी अबाउट योर हैंड राइटिंग्स, जस्ट कीप ऑन राइटिंग। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्वेश्चन को समझने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब लिखना शुरू करो तो बिना रुके फ्लॉलेसली आपको कंटिन्यूसली लिखना है, एक स्मूथ फ्लो में, ठीक है। और स्मूथ फ्लो में लिखना चाहते हो स्पीड में, तो हैंड्स फ्री हैंड राइटिंग की कोशिश करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि पेन या पेंसिल इस तरीके से पकड़ते, उनका फिंगर देखना, थोड़ा जूम करना है मेरे फिंगर पे, फिंगर लिटरली सीधा होने की जगह पे फिंगर ऐसा हो जाता है, ऐसा लिटरली इतना प्रेशराइज करते। अगर आप इतना प्रेस करके लिखोगे तो आपकी उंगली 7th पेपर तक में डेफिनेटली दर्द करेगी, ऐसा लगेगा उंगली निकाल के फेंक दूँ, इतना दर्द करेगा। तो यू हैव टू सी टू इट दैट यू मेंटेन गुड हेल्थ एंड योर फिंगर्स, योर बॉडी पार्ट्स सपोर्ट यू। आपको स्मूथली लिखना है, जितना स्मूथली पहले 6 पेपर लिखोगे उतना DT पेपर आपका जल्दी खत्म होगा, उतनी उंगलियां दर्द कम करेगी, ठीक है। नाउ आप लकी हो, यू आर क्वाइट प्रिविलेज दैट यू हैव 1 डे ऑफ बिफोर एवरी पेपर, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अच्छा वक्त मिल जाएगा। नाउ इसका पेपर के बाद, इसका का पेपर जो होगा उसके बाद DT पेपर होगा, तो 1.5 दिन का वक्त मिलेगा आपको DT पेपर प्रिपेयर करने के लिए, 1.5 दिन का, आधा दिन इसका पेपर के बाद और एक पूरा दिन DT पेपर के पहले। उन 1.5 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ना है दैट आई विल गाइड यू एज एंड व्हेन वी प्रोसीड फर्दर। जब हम सिलेबस शुरू करेंगे, हम पढ़ना शुरू करेंगे, एट दैट टाइम आई विल गाइड यू कि आपको उन 1.5 दिनों को किस तरीके से टू इट्स मैक्सिमम लेवल, ऑप्टिमिस्टिकली आपको किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है उस 1.5 दिन का, दैट वी विल डिस्कस। मेरा फिलहाल के लिए इतना कहने का मतलब है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो यू मस्ट सी टू इट दैट यू कंप्लीट एटलीस्ट 85 to 90 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर। majority students end up completing only 70 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर। अगर आपका सिर्फ 70 मार्क्स का पेपर खत्म होता है तो आप खुद ही सोचो आप कितने कम एफिशिएंट हो आप। दैट मीन्स यू कुड नॉट कंप्लीट योर गिवन टास्क विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। आपको नेगेटिवली देखा जाएगा, आपको पहले करेंगे फेल करवाने में, तो यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अभी रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट ही कंप्लीटेड 58 मार्क्स ऑफ पेपर, ओनली 58। बोला सर मलेरिया हो गया था, मैं लिख ही नहीं पाया अभी मलेरिया में, लेकिन वो क्वालिटी आंसर लिख के आया। तो ही गॉट सरप्राइजिंगली 53 मार्क्स आउट ऑफ 58। 53 मार्क्स, कैन यू बिलीव? सिंपली क्वालिटी आंसर। आई हैव करेक्टेड पेपर्स इन पास्ट। कुछ लोग भर भर के लिख के आते हैं, अननेसेसरी चीज़ें लिख के आते हैं। सी एग्जामिनर जो आदमी आपका पेपर करेक्ट करेगा उसका वक्त भी कीमती होता है, यू मस्ट रिस्पेक्ट हिज टाइम ऑल्सो। मैंने कुछ लोगों के, मैंने तो इसका के पेपर्स भी चेक किए। पेपर चेक करते वक्त इंस्टीट्यूट से हमको आंसर्स दिए जाते हैं कि ये आंसर है और ये क्वेश्चन है। हम जब स्टूडेंट का आंसर चेक करते हैं तो जिसने बड़े बड़े आंसर्स लिखे हैं, फालतू चीज़ें लिखी है, हमको मालूम है कि इस चीज़ का आंसर इतना ही है, इतने आंसर की जगह पे स्टूडेंट अगर बहुत कुछ लिख के आता है तो दैट मीन्स वी कंसिडर इट नेगेटिवली कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप फालतू की चीज़ें, बेकार की बातें लिख के आ रहे हो। आपको जो पूछा गया है वो उसका आंसर इतना ही है। आप इतने की जगह पे अगर 2.5 पन्ने लिख के आते हो, 2.5 पेज का आंसर, तो 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं, 2.5 पेज आंसर के नहीं होते। ऐसे लोगों को मैं तो सीधा 0 दे देता हूँ, ख़त्म। कौन पढ़ेगा? टाइम किसके पास है? यू कांट वेस्ट माई टाइम। 2.5 पेज पढ़ने के लिए मेरा कितना टाइम जाएगा? मेरे पास टाइम नहीं है। अगर किसी ने 10 लाइन की जगह पे 2.5 पेज लिखे तो मतलब उसको आंसर आता ही नहीं है, मैं तो 0 दे के आगे बढ़ूंगा। तो कहने का मतलब है यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, तभी आपका पेपर भी खत्म होगा। जो पूछा गया है उसका टू द पॉइंट आंसर दो, इधर उधर की बातें नहीं चाहिए, सीधा सीधा जो आंसर है वही देना है आपको, ठीक है। सो यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस योर आंसर विद अ गुड टेक्निकल लैंग्वेज। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट, अगर आप मे अटेम्प्ट में दे रहे हो, मे में अपेयर कर रहे हो, तो
यू मस्ट फोकस ऑन लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट के ऊपर, लेटेस्ट अमेंडमेंट जिसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी रखता हूँ, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के ऊपर देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। 20 मार्क के क्वेश्चंस तो पक्के आते ही हैं मे अटेम्प्ट में। हाँ, कभी कभार अनफॉर्चुनेटली कम या ज़्यादा हो सकता है। अभी रिसेंटली एक अटेम्प्ट में 70 मार्क्स के पूरे पेपर में से 70 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर वाज ओनली ऑन लेटेस्ट अमेंडमेंट, 70 मार्क्स पेपर। कभी कभी 10 मार्क के भी क्वेश्चन आए हैं। जनरली आइडियल वेटेज इज 20 मार्क्स, दिस इज द आइडियल वेटेज। कभी एक्सेप्शनली 10 मार्क या 70 मार्क्स के आ जाते हैं। सिमिलरली अगर आप नवंबर में अपियर कर रहे हो, नवंबर अटेम्प्ट, तो यू मस्ट सी टू इट दैट lot of questions are asked on latest case laws, latest case laws. Case laws play a very important role for DT as well as IDT both. Case laws का वेटेज भी 16 to 20 मार्क्स रहता है। बीच में कुछ अटेम्प्ट में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं इंस्टीट्यूट ने। ये अमेंडमेंट्स या केस लॉ कहाँ से करने के, तो अमेंडमेंट्स के लिए तो मेरी शीट आएगी, इंस्टीट्यूट की बुकलेट भी आती है, मेरी शीट भी आती है। जहाँ तक केस लॉ का सवाल है, डीटी आईडीटी दोनों के केस लॉ की अलग से सप्लीमेंट्री बुक आती है, बुकलेट ऑफ इंस्टीट्यूट। ये सब लिख के रखना, कभी काम में आएगा। बुकलेट ऑफ ICAI 70-80 रुपीज़ की बुकलेट आती है जो आपको खरीदना है। टोटल हर साल 3000 से ज़्यादा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं, 3000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं। टोटल मिला के पूरे साल में इनकम टैक्स के 15 से 20 हज़ार केसेस होते हैं इनकम टैक्स के, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में 15 से 20 हज़ार। उसमें अपनी इंस्टीट्यूट तकरीबन 150 केस लॉस, 150 के आसपास केस लॉ सिलेक्ट करके एक बुकलेट छापती है केस लॉ। कुछ कुछ ऑथर भी अपनी बुक प्रिंट करते हैं, नॉर्थ इंडिया साइड ऑथर, इवन साउथ इंडिया में मनोहरन साहब भी करते हैं। लेकिन कोई भी ऑथर की बुकलेट रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 केस लॉ में से अगर अपनी इंस्टीट्यूट 150 केस लॉ सिलेक्ट करके देती हैं तो, और फ्री में नहीं देते, बेचते हैं, तो इसका सेल्स बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट विल बी आस्किंग क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दीज केस लॉज ओनली। तो आपको इंस्टीट्यूट के ही केस लॉ करने हैं, इधर उधर नहीं भटकना है। कोई भी ऑथर कुछ भी लिखे, सब पैसे बनाने के चक्कर में पड़े हैं। डोंट रेफर टू एनीथिंग, रेफर टू ओनली इंस्टीट्यूट मटीरियल। बराबर है? ओके। सो लेटेस्ट अमेंडमेंट के लिए भी इंस्टीट्यूट की बुकलेट आएगी प्लस मेरी भी बुकलेट आएगी, दोनों को कंबाइन करके पढ़ो आप। मेरी बुकलेट लास्ट मोमेंट रेफरेंस के लिए इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। लेटेस्ट केस लॉ के लिए सिर्फ इंस्टीट्यूट की बुकलेट और मेरा केस लॉ का लेक्चर रहेगा, वो आप देख लो। अमेंडमेंट के ऊपर भी मैं लेक्चर रखता हूँ, तो वो भी आप देख लो, तो आपकी नैया पार हो जाएगी, आपके इतने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ओके, नाउ जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, there are 41 chapters of CA final plus 5-6 topics of IPCC, business profession, capital gain, other sources, set of carry forward, etc., salary। टोटल मिला के अराउंड 47-48 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, 47-48 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन उनमें से कुछ चैप्टर्स इतने छोटे छोटे हैं कि एक लेक्चर में 4-4, 5-5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। एक लेक्चर में 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बट सम चैप्टर्स आर वेरी लेंदी, जैसे कि वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स 8 लेक्चर चलता है, मैं 66 क्वेश्चंस कराता हूँ वेल्थ टैक्स के ऊपर। वेल्थ टैक्स, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर, TDS का चैप्टर, ये सब, इनमें से कुछ टॉपिक्स आप IPCC में कर भी चुके होंगे। लेकिन IPCC का वेटेज और IPCC का लेवल, यू कैन इमेजिन क्या लेवल है। IPCC लेवल इज़ वेरी लो। फाइनल CA में वही टॉपिक लाइक असेसमेंट प्रोसीजर, TDS भी आपको IPCC में था, लेकिन उसका वेटेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही चैप्टर है फाइनल CA में, लेकिन वेटेज इज़ वास्ट। आपको इन डेप्थ स्टडी करना है, मज़ा आएगा, यू रियली लव इट, मज़ा आएगा आपको। एक डिटेक्टिव सीरियल या डिटेक्टिव थ्रिलर मूवी देख रहे हो, ऐसा मज़ा आएगा आपको। लेकिन यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स। अगर आप मुझे मार्क्स वेटेज पूछो चैप्टर वाइज कि इन 47-48 टॉपिक्स में से कौन से चैप्टर का कितना वेटेज,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो बडी कैन प्रिडिक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी चैप्टर से कितने भी मार्क्स का अचानक पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनल्टीज चैप्टर, पेनल्टी करके एक चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे अटेम्प्ट तक कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। ऑल ऑफ अ सडन इंस्टीट्यूट ने ऑल ऑफ अ सडन मई 2008 अटेम्प्ट में 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ ले, 20 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सच अ चैप्टर जिसके ऊपर क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं थे। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट नो बडी कैन प्रिडिक्ट। स्कैनर, मनोहरन, विनोद गुप्ता, कोई भी हो, अगर उनकी बुक में कुछ भी दिया है तो प्लीज इग्नोर इट, इट विल बी वेरी सुसाइडल। पागलपन होगा ऐसी चीज़ों को रेफर करना। हाँ, एक ही चीज़ का अश्योरेंस दिया जा सकता है जो इंस्टीट्यूट ने खुद दिया हुआ है कि आउट ऑफ 100 मार्क पेपर 10 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑन वेल्थ टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स, रिमेनिंग 90 मार्क्स विल बी ऑन इनकम टैक्स। ये वेटेज दिया हुआ है। वेल्थ टैक्स में मैं बहुत डीप में पढ़ाऊंगा आपको, और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मेरे किसी भी स्टूडेंट को वेल्थ टैक्स में 10 से कम मार्क्स नहीं आते हैं। यू विल गेट फुल 10 आउट ऑफ 10 इन वेल्थ टैक्स। आपको बहुत ही सिंपल लगेगा वेल्थ टैक्स अगर आप मेरे अंडर पढ़े हो। बाकी के 90 में से आपको 50 प्लस स्कोर करने हैं, दैट इज हाउ 60 प्लस आ जाएंगे आपको, ठीक है। ओके, ये सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करना। दूसरे सब्जेक्ट 100 घंटे में ख़त्म हो सकते हैं, अकाउंट्स, FM, कॉस्टिंग या वगैरह। इसका गेट्स ओवर इन 45 आवर्स, 45-50 आवर्स। अगर आप कुछ पर्टिकुलर ट्यूटर के अंडर पढ़ते हो तो 100 घंटे के ऊपर जाता है, और कुछ ट्यूटर्स आपको 40-50 घंटे में ख़त्म करवाते हैं। लेकिन DT 210 घंटे तकरीबन चलता है, 210 से भी ज़्यादा वक्त लगता है। व्हाट आई मीन टू से, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर में तकरीबन डबल टाइम लगता है, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। सो प्लीज़, हर सब्जेक्ट अपनी जगह पे होता है। इफ़ यू रियली वांट टू गेन नॉलेज तो आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, और फीस स्ट्रक्चर भी उस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ चैप्टर्स काफ़ी बोरिंग होते हैं। यू डोंट हैव टू अटेंड दी लेक्चर्स फॉर एंटरटेनमेंट। ये आप एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी देखने के लिए नहीं आते हो। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, मूवी देख के आओ, फिर आके फ्रेश मूड में आप लेक्चर देखो, एंड यू विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम मी, ठीक है। ओके, नाउ सो एक लास्ट पॉइंट, उसके पहले एक बार रिमाइंड करा लूँ कि आपको 7 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक कंपलसरी, बाकी 6 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन राइटिंग, यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, और पेपर कैसे भी ख़त्म होना चाहिए। नहीं होता है तो थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, 2-3 लाइन छोड़ के आपको टिक कर देना है कि ये हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो आपको इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नेगेटिवली, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आता नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरी एक चीज़, अगर जो मुझे जनरली लोग पूछते हैं दैट कौन से ऑथर की बुक रेफर करने की, विच बुक शुड बी रेफर्ड। आंसर, मेरी नोट्स आपको मिलेगी, 3 बुक मिलेगी। मैंने 3 बुक रखी हैं। आई हैव डिवाइडेड द बुक्स इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, ये 3 नोट्स ऐसे हैं कि जिसका जेरोक्स नहीं हो सकता, फोटोकॉपी करना पॉसिबल नहीं। अगर आप फोटोकॉपी करोगे तो पूरा डार्क हो जाएगा, बराबर, तो यू हैव टू अरेंज इट फ्रॉम मी ओनली। 3 बुकलेट होगी। पहली बुकलेट में जो सबसे मोटी होगी, एंड मेरी नोट्स रेफर करने के बाद आपको और कोई भी ऑथर की बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारे ऑथर्स हैं। सिंघानिया, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ बाइबल, दिल्ली बेस्ड ऑथर सिंघानिया। गिरीश आहूजा, 3rd नंबर आता है मनोहरन का, सबसे ज़्यादा बिकती है मनोहरन की बुक, और चौथा विनोद गुप्ता इज़ ऑल्सो गुड बुक। लेकिन आपको कोई भी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑथर्स की जो बुक होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, क्लासेस नहीं लगाई, उनके लिए। आपको इफ़ यू आर रेफरिंग टू माई नोट्स, बिलीव मी, मेरी नोट्स मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं। पूरे साल में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से नोट्स लेके जाते हैं।
और उसमें से कितने सारे लोग एक दूसरे को पास ऑन भी करते होंगे। ओके, लेकिन पार्ट 1 3 बुकलेट मिलेगी आपको। पार्ट 1 विल बी फाइनल सीए, ओनली फाइनल सीए टॉपिक्स, फाइनल सीए टॉपिक्स, फाइनल सीए टॉपिक्स का इट विल बी थियरी पार्ट। दूसरा आपको मिलेगा फाइनल सीए टॉपिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर बुकलेट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर। पहली बुक तकरीबन 250 पेज की होगी, दूसरी बुक 150 पेज के आसपास होगी, 160 170, और तीसरी बुकलेट होगी फॉर सिलेक्ट आईपीसीसी टॉपिक्स, सिलेक्ट आईपीसीसी टॉपिक्स थियरी, थियरी। ओके, नाउ मैंने जिस तरीके से कवर किए हैं नोट्स को, वेरी सिंप्लीफाइड, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, very good quality examples, one of the best in the market, so be rest assured about the quality of the books. Comprehensive coverage, briefly, कोई 1800 पेजेस की बुक, बड़ी बड़ी मोटी सी बुक रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ऑथर लोग, आप किसी पब्लिकेशन हाउस में जाओगे तो पब्लिकेशन हाउस वाले, मैं काफ़ी सारे पब्लिकेशन हाउस में जा चुका हूँ, एक ही बात, पब्लिकेशन हाउस वाले एक ही बात बोलते हैं कि सर हम बुक बेचते हैं, ये टैक्समैन पब्लिकेशन या वगैरह, एक ही बात उनकी होती है कि सर 50 पैसे पर पेज के हिसाब से हम बुक बेचते हैं, 50% पर पेज बुक बिकती है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। उसमें से 30 पैसे इज़ अ कॉस्ट ऑफ द बुक, 30 पैसे इज़ अ पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह, एंड 20 पैसे इज़ द प्रॉफिट मार्जिन, 20 पैसे पर पेज प्रॉफिट। इसमें से 10 पैसा पर पेज पब्लिकेशन हाउस वाले लेके जाते हैं और 10 पैसे पर पेज ऑथर को मिलते हैं। सिंस द प्रॉफिट मार्जिन इज 10 पैसे पर पेज, पब्लिकेशन हाउस वाले एक ही बात करते हैं कि जितनी मोटी बुक लिखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, छोटी बुक लिखोगे उतना कम प्रॉफिट होगा। बुक तो उतनी बिकनी है जितनी बिकनी है। एक का एक स्टूडेंट, ये कोई आइसक्रीम नहीं है कि दोबारा खरीदेगा, एक की एक बुक 2 बार 4 बार खरीदेगा। कोई स्टूडेंट को बहुत अच्छी लग गई तो 2-3 खरीद लेगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही बुकलेट होगी। इन सच सिचुएशन ये पब्लिकेशन हाउस वाले, ये ऑथर्स, मेनली नॉर्थ इंडिया के ऑथर्स काफ़ी फेमस है, जानबूझ के फालतू की चीज़ें ऐड करके बुक को मोटी बनाई जाती है। ठीक है, ये बुक को मोटी क्यों बनाई जाती है? 1800 पेज, 2000 पेज, 1500 पेज, एक ही रीज़न, ताकि उनका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, ओके, सो सिंपली लेट्स कंक्लूड इट नाउ। बहुत हो गया भाषणबाजी, आई एम श्योर आप भाषण सुनने के लिए नहीं आए हो, ये सब आपको मालूम ही है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जर्नी ऑफ 200+ आवर्स, हैव अ वेरी वंडरफुल लर्निंग अंडर मी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, सी यू सून विथ lectures.